معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جو بائیڈن امریکہ کے نومنتخب صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم نہ کرنے کو باعث شرمندگی قرار دے دیا۔ بحرین کے وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ انتقال کر گئے۔ رواداری کو پھیلایا جائے اور شدت پسندی کا قلع قمع کیا جائے، شاہ سلمان۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کو 20 تربیت یافتہ فوجی گھوڑے اور بارودی سرنگوں کا سوراخ لگانے والے 10 کتے تحفے میں دیے۔ کرناٹک کے شہر میسور میں ٹیپو سلطان کو 171ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ضمنی انتخابات، کئی ریاستوں میں بی جے پی کی یک طرفہ کامیابی۔ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بہار نتائج نتیش کمار کی قیادت والے این ڈی اے کو ملی 125 سیٹیں، مہا گٹھ بندھن 110 پر محدود۔ بہار کے وزیر اعلیٰ عہدے کا 7ویں مرتبہ حلف لے کر تاریخ رقم کریں گے نتیش کمار۔ بہار انتخابات میں ای وی ایم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، الیکشن کمیشن۔ پریس کی آزادی پر ایڈیٹرز گلڈ نے یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھا خط، جیل میں بند صحافیوں کو چھوڑنے کو کہا۔ ممبئی میں داؤد ابراہیم کی املاک ہوئی نیلام، دہلی کے 2 وکلاء نے حاصل کی 6 پراپرٹیز۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے معاملوں میں کمی کا رجحان جاری، آج 88 نئے مریض مصدقہ۔ آج قومی یوم تعلیم کے موقع پر کڑپا میں ابوالکلام آزاد کی 133ویں جینتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ ڈی ایس پی راجن پیٹ نارائنا سوامی ریڈی کی پریس کانفرنس۔ راجن پیٹ ایس آئی روشن نے کرکٹ بیٹنگ کر رہے 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے 1,04,080 روپے اور 2 موبائل فونز ضبط کر لیے۔ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی منتخب ہونے پر کڑپا مجلس آفس میں جشن۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی پر عوام کا اعتماد قرار دیا۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ جو بائیڈن امریکہ کے نومنتخب صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم نہ کرنے کو باعث شرمندگی قرار دے دیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارت انتخاب میں اپنی شکست تسلیم نہ کرنا باعث شرمندگی ہے۔ جو بائیڈن، جو کہ الیکشن کے متوقع نتائج میں فاتح قرار پائے ہیں اور عالمی رہنماؤں سے رابطے قائم کرنے میں مصروف ہیں، انہوں نے زور دیا ہے کہ قیادت کو منتقل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بحرین کے وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ انتقال کر گئے۔ بحرین کے شاہی محل نے اعلان کیا ہے کہ منامہ حکومت کے وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ بحرین کی سرکاری نیوز ایجنسی بحرین نیوز ایجنسی BNA کے مطابق شہزادہ خلیفہ امریکہ کے میو کلینک اسپتال میں علاج کے لیے داخل تھے، جہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ شہزادہ خلیفہ کا شمار دنیا کے سب سے طویل مدتی وزرائے اعظم میں ہوتا ہے۔ رواداری کو پھیلایا جائے اور شدت پسندی کا قلع قمع کیا جائے، شاہ سلمان۔ جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے پیر کے روز سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے طریقے زیر بحث آئے۔ علاوہ ازیں مملکت میں رواں ماہ ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کی کامیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کی گئی۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش کو 20 تربیت یافتہ فوجی گھوڑے اور بارودی سرنگوں کا سوراخ لگانے والے 10 کتے تحفے میں دیے۔ ہندوستانی فوج نے بنگلہ دیش سے 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی ملک کی کوششوں کے تحت اسے مکمل تربیت یافتہ 20 فوجی اور بارود سرنگ کا پتہ لگانے والے گھوڑے اور 10 کتے تحفے کے طور پر دیے۔
कर्नाटक के शहर मैसूर में टीपू सुल्तान को 171वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया। मैसूर की शान टीपू सुल्तान को उनके 171वें यौम पैदाइश के मौके पर याद किया गया। इस मर्तबा कोरोना वबा के बाइस आयद की गई पाबंदियों की वजह से कहीं भी जुलूस और कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद नहीं हुई, लेकिन टीपू सुल्तान के मदाहों ने मुख्तसर तौर पर आपकी विलादत का जश्न सादगी के साथ जगह जगह मनाया। ज़िमनी इंतखाबात, कई रियासतों में बीजेपी की एक तरफा कामयाबी। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और तेलंगाना में शानदार कामयाबी के साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में शिकस्त फाश का सामना भी करना पड़ा। बिहार असेंबली के साथ साथ 11 रियासतों के 59 असेंबली हलकों के इंतखाबी नताइज आ गए हैं। उन नताइज ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मुल्क के अवाम के नजदीक महंगाई, सियासी खरीदो फरोख्त और नजर नसक कोई मसला नहीं है। इंतखाबी नताइज ने जहां बीजेपी लीडरों और कारकुनों को मसरूर कर दिया है, वहीं अपोजिशन एक बार फिर सकते में है कि ऐसी क्या बात है कि आसमान छूती महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और कोरोना के बाद लगने वाले लॉकडाउन के दरमियान की बदनज़मी के बाद भी बीजेपी के हक में इस कदर पोलिंग हो रही है। बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस के 5 अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस तारीखी कामयाबी पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अखबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए बिहार की जनता ने न सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीख़ी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो एमआईएम पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब, जो हैदराबाद के साबिक़ा मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, मैं उनका और जो हैदराबाद से, महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ्फार कादरी, सैयद मोइन, फिरोज़ लाला और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके पर जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, देवेंद्र यादव साहब का, राजभर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग उनके साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाए, हमने साथ इलेक्शन लड़ा। और मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और मैं उनको तयक़ुन देना चाहता हूँ कि हमने हमेशा इस बात को कहा है कि जब हमने बिहार में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो हम इस बात का वादा किए थे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल से इंसाफ कराएंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से पिछले 60 साल से इंसाफ नहीं हुआ। वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। इसीलिए सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई ये जारी रहेगी और जो हमको सीमांचल की जनता ने हमारे उम्मीदवारों को वहाँ पर विधायक बनाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के बिहार नताइज नीतीश कुमार की क़यादत वाले एनडीए को मिली 125 सीटें, महागठबंधन 110 पर महदूद। बिहार में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर अक्सरियत का हदफ हासिल कर लिया है, जबकि बीजेपी तकरीबन 2 दिहाइयों के बाद एनडीए ने जेडीयू पीछे छोड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब रही।
बिहार के वजीर आला ओहदे का 7वीं मर्तबा हलफ लेकर तारीख रकम करेंगे नीतीश कुमार। बिहार असेंबली इंतखाबात में जीत के साथ नीतीश कुमार एक और तारीख रकम करने वाले हैं। वो बिहार के वजीर आला के तौर पर 7वीं मर्तबा हलफ लेंगे। बिहार में आरजेडी की इख्तिदार का खात्मा करके वजीर आला की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार ने इख्तिदार की बागडोर कभी अपने हाथ से फिसलने नहीं दी। नीतीश कुमार अक्सरियत के साथ भले ही 2005 में वजीर आला बने, लेकिन इससे पहले साल 2000 में भी वो वजीर आला के ओहदे का हलफ ले चुके थे। हालांकि कुछ ही वक्त बाद अक्सरियत साबित न कर पाने की वजह से उनकी हुकूमत गिर गई थी। बिहार इंतखाबात में ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात की तरदीद की है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है और वोटों की गिनती निहायत सुस्त रफ्तार से हो रही है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप जैन और चंद्रदोष कुमार ने मंगल की सहपहर को यहाँ नामानिगारों के सवाल के जवाब में ये बात कही। ये पूछे जाने पर कि क्या इस बार वोटों की गिनती सुस्त रफ्तारी से हुई है, उन्होंने कहा कि इस बार पोलिंग स्टेशनों की तादाद में कोविड-19 की वजह से इजाफा किया गया है। बज़ाहिर इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और समाजी फासले की वजह से गिनती के मराकिज की तादाद भी बढ़ा दी गई है और गिनती की मेज भी कम कर दी गई है, लेकिन वोटों की गिनती इसी रफ्तार से हो रही है। प्रेस की आजादी पर एडिटर्स गिल्ड ने योगी आदित्यनाथ को लिखा खत, जेल में बंद सहाफियों को छोड़ने को कहा। योगी आदित्यनाथ को लिखे खत में एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि मुंबई में एक एडिटर की गिरफ्तारी पर उन्होंने प्रेस की आजादी की बात उठाकर सही किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सहाफियों को डराने, धमकाने और हरासा करने की और भी तकलीफदा वाकयात रूनुमा हुए हैं। साथ ही सहाफियों को उनका काम करने से रोका गया है। मुंबई में दाऊद इब्राहिम की इमलाक हुई नीलाम। दिल्ली के 2 वकला ने हासिल की 6 प्रॉपर्टीज। जराइम की दुनिया के बादशाह दाऊद इब्राहिम की इमलाक बिलाखिर नीलाम हो गई है। दिल्ली के 2 वकला ने दाऊद की 6 प्रॉपर्टीज हासिल की हैं। दाऊद इब्राहिम की इमलाक की नीलामी के जरिए हुकूमत को 22,79,600 की आमदनी हासिल हुई है। वकील अजय श्रीवास्तव को दाऊद इब्राहिम की 2 प्रॉपर्टीज और वकील भूपेंद्र भारद्वाज ने 4 प्रॉपर्टीज नीलामी में खरीद ली है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में कमी का रुझान जारी। आज 88 नए मरीज मुसद्दिका। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में कमी का सिलसिला जारी है। आज 88 नए मरीज मुसद्दक पाए गए, जिससे ताहाल ये तादाद बढ़कर 53,554 हो चुकी है। आज 119 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जिससे यह तादाद बढ़कर 52,210 हो चुकी है। आज तक 515 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। महकमा पुलिस की जानिब से कोविड-19 के तदारुक के लिए मुहिम चलाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनवरन के अहकाम के तहत आज बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 115 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 31,598 रुपये जुर्माना आयद किया गया। अनवरन ने अवाम से समाजी दूरी का लिहाज रखने और बगैर मास्क के बाहर न निकलने की हिदायत दी है, वरना कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। आज कौमी यौम तालीम के मौके पर कड़पा में अब्दुल कलाम आजाद की 133वीं जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, कौमी यौम तालीम के मौके पर कड़पा कलेक्ट्रेट में मुल्क के पहले मरकजी वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती तकारीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए जिला कलेक्टर कड़पा हरी किरण ने कहा कि आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की 133वीं यौम पैदाइश है, जिसे हर साल कौमी यौम तालीम की हैसियत से मनाया जाता है, जिसकी वजह यह है कि उन्होंने मुल्क को जदीद तालीम और मुल्क को सही तारीख से आशना कराया। हरी किरण ने कहा कि तालीम से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। तालीम के हुसूल से समाज में गरीबी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जिला कड़पा में अक़लियतों की तरक्की और बहबूद पर 134.42 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने इस प्रोग्राम को अपने दफ्तर वाक़े ताड़ेपल्ली से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस इफ्तिताह किया और अपना पैगाम दिया। हरी किरण ने कहा कि मौलाना आजाद न सिर्फ एक मुजाहिद आजादी थे,
بلکہ کئی خوبیوں کے مالک تھے، ماہر تعلیم، شاعر، صحافی اور ایک بہترین رائٹر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں تعلیمی شعبے اور اقلیتی بہبود پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ریاست بھر میں امام مؤذنوں کے لیے بھی اعزازی طور پر ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ MLC ذکیہ خانم نے مولانا آزاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ماہر تعلیم، مجاہد آزادی اور قومی یکجہتی کی علامت قرار دیا۔ اس موقع پر خطیب سات روڈ مسجد ولی اللہ حسینی نوری نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر YSR قائدین کریم اللہ، مولانا اسحاق آستانِ مخدوم الہی کے نائب، آستانِ بغدادیہ کے سجانشین محمد علی بغدادی اور بڑی تعداد میں اقلیتی قائدین نے شرکت کی۔ 133వ జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా జరుపుకుంటున్నాం। మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి గురించి రెండు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఆయన లౌకికవాది, దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరించి అటు దేశ విభజన సమయంలో కూడా దేశ విభజనకి వ్యతిరేకంగా ఆయన కూడా ఉండి అంతా దేశం కలిసి ఉండాలి, కలిసి మనందరం పెరగాలి అన్న నినాదంతో ముందుకెళ్ళిన వ్యక్తి। బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద పోరాడి కొన్ని సంవత్సరాలు జైల్లో కూడా గడిపిన వ్యక్తి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు। అంతేకాకుండా ఆయన ఒక సాహితీవేత్త, అటు ఉర్దూ సాంప్రదాయ ఉర్దూ భాషే కాకుండా ఇతర భాషలు కూడా పర్షియన్, ఇంగ్లీషు అన్నిట్లో కూడా మంచి రచయిత, ఆయన జర్నలిస్టు, ఇన్ని మల్టీ టాలెంటెడ్ వ్యక్తి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు। అందుకనే ఆయన టాలెంట్ ని గుర్తించి మొట్టమొదటి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా అప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి గారు ఆయన నియమించడం జరిగింది। సో దీర్ఘకాలం పాటు 47 నుంచి 58, 11 సంవత్సరాలు దీర్ఘకాలం ఆయన మొట్టమొదటి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఆయన సేవలు అందించారు। ఈ రోజు మనం చూస్తున్న బోర్డులు, టెక్నికల్ కమిటీలు, యూనివర్సిటీ యాక్ట్ అన్నీ కూడా పునాదులు ఆ కాలంలో పడ్డాయి। ఈ రోజు జరిగిన UGC యాక్ట్ కావచ్చు, AICT కావచ్చు, ఇట్లాంటి ఎన్నో సంస్థలుకి అన్నిటికీ పునాది వేసింది ఆ మొదటి 10-15 సంవత్సరాల్లో। దానికి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి తోడ్పాటు, ఆయన బ్రెయిన్ చైల్డ్ చాలా ఉన్నాయి, చాలా సంస్థలు। ఈ రోజు కూడా మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినా సరే, 70 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం అవన్నీ సంస్థలు। DSP राजनपेट नारायण स्वामी रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनपेट SI रोशन ने क्रिकेट बेटिंग कर रहे 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 1,04,080 रुपये और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। DSP राजनपेट नारायण स्वामी रेड्डी ने आज राजनपेट में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नूर पुलिस स्टेशन के CI रोशन ने बावसूख जराये से मिलने वाली इतला पर कल रात 11:15 पर 2 अफराद 34 साला सैयद मोहम्मद आरिफ और 30 साला चेरेपल्ली मुनैया को धावा करके गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 1,04,080 रुपये और 2 मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। ये दोनों मुलजिमीन मुबैना तौर से राजनपेट मंडल के पुलिस चेरू के करीब वाक़े मंदिर के पास IPL 2020 मुंबई इंडिया vs दिल्ली पर क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस पाए गए। तफसीलात बताते हुए DSP राजनपेट नारायण स्वामी रेड्डी ने बताया कि सैयद मोहम्मद आरिफ जो पेशे से मैकेनिक है, 1 साल कबल कुवैत से राजनपेट आया, फिर कुवैत नहीं गया। बुरी आदतों की वजह से और अपने पेशे को तर्क करते हुए इसने गलत रास्तों से पैसे कमाने का तरीका इख्तियार किया। मुनिया से मिलकर क्रिकेट बेटिंग करने का फैसला किया। मुनिया जो कि MBA तालीम याफ्ता है, बेरोजगारी की वजह से क्रिकेट बेटिंग को इख्तियार करने का फैसला किया। DSP नारायण स्वामी रेड्डी ने आवाम से कहीं भी क्रिकेट बेटिंग या गैर समाजी सरगर्मियों की सूरत में इतला देने की ख्वाहिश की है। इतला देने वालों के नामों को राज में रखा जाएगा। उन्होंने इस कार्रवाई पर CI रोशन और उनके अमले की सताइश की। కువైట్ వారితో సంబంధించిన వారితో ఇట్లా వేరే విధంగా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు। ముఖ్యంగా యూత్ పెడదలు పడుతున్నారు, ఈ నష్టపోయేది వాళ్ళే, లాస్ అయిపోతారు। చాలా మంది అప్పుల పాలైపోయి స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోల్పోతున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నారు। దయచేసి దాని బహుమతి ఉండాలని बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 5 अराकीन असेंबली मुंतखब होने पर करता मजलिस ऑफिस में जश्न। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर अवाम का एतमाद करार दिया।
बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली की शानदार कामयाबी पर कड़पा में जश्न मनाया गया। सदर जिला मजलिस कड़पा मोहम्मद अली ने जिला दफ्तर मजलिस कड़पा में केक काटा और आतिशबाजी की। इस मौके पर मजलिस के कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अली ने कहा कि ये फतह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एतमाद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की अंत तक जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज मजलिस को सारे मुल्क में शानदार कामयाबी हासिल हो रही है। आइंदा हर रियासत में इंतखाबात में मजलिस हिस्सा लेगी। ये अवाम की ख्वाहिश है कि मजलिस उनकी रियासतों में भी अपने और दूसरों के जरिए उम्मीदवार खड़ा करे। इस मौके पर अल्लाह बख्श, मस्तान, मौला अली, इरफान, चांद अली, सद्दाम, निजाम और दूसरों ने शिरकत की। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। अहले कफस तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना